Okay, so Bacha Party, we are going to start today with this chapter on reproduction in animals. Okay. Now, what do you exactly mean by reproduction? Reproduction माने क्या? Reproduction means producing its own kind. Okay. Reproduction basically means production of its own kind. So here we have animals. Reproduction is the ability of the living organism to produce young ones similar to themselves. ठीक है. So the production of young ones similar to themselves, that is basically a process of reproduction. Okay. किसी भी species के, ठीक है, for any species, in order for it to go ahead, in order for it to survive, in order for it to actually make a mark, reproduction is a very essential process. Okay. Let me mark the board here. तो दिख रहा है यार, ठीक है. ओके, सो चलिए भाई साहब चलते हैं. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ. ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एज अ रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन. सो जितने भी आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, एज वेल एज अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर ऑल अ प्रोडक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन. कैमरा को थोड़ा सा एडजस्ट करना है भाई साहब. ठीक है. सो एवरीथिंग बेसिकली, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑल लिविंग स्पीशीज आर एज अ रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है. ओके, सो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. द फर्स्ट इज बेसिकली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बच्चा पार्टी, हेयर मीन्स ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट. ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट. जहां जहां मैं बोलूं उसको लिख लीजिएगा. ठीक है. So types of reproduction, इसको लिख लीजिए. Types of reproduction, the first thing that comes here is asexual reproduction. Okay. In the first type of reproduction we have asexual reproduction. बच्चा पार्टी, asexual reproduction means what? Only a single parent involvement. For example, when you go to Xerox, किसी के अगर आप Xerox कराना चाहते हैं तो वो एक कॉपी से दूसरी कॉपीज बनती रहेंगी, है ना. ठीक है. So that is basically called, so there is only a single parent involvement in this, and that is called asexual reproduction. For example, here we look at amoeba. This is basically amoeba. It is a unicellular organism. You see how it is getting divided. ठीक है, आपको दिख रहा है ये कैसे, एक ही है सिंगल पेरेंट, दो न्यूक्लियस में बढ़ गया, अभी धीरे धीरे ये वैसा डिवाइड हो जाएगा. सो एक से दो हो गया, दो से चार हो जाएंगे, चार से आठ हो जाएंगे. ठीक है. सो यहाँ पे सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है. देयर इज ओनली एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट आउट हियर. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Sexual reproduction, when gametes from both the parents are coming, there is basically involvement of both parents, that is known as sexual reproduction. So reproduction basically is of two types, sexual and asexual. Asexual, only a single parent involvement is there. Sexual, both the parents are involved. Okay. So now let's say in sexual reproduction, the sperm and the egg, okay, fuse and they produce the zygote or the child. Okay, so that is how the reproduction basically takes place in sexual mode. Okay, so there are two types of reproduction. So this is basically the sperm and the eggs. This is basically fusing and the eggs are forming. Okay, so this is basically the zygote which is getting formed, and from this zygote the development of the child take place. Okay, so we have two modes of reproduction. Let us first study about asexual reproduction. So what is asexual reproduction, बच्चा पार्टी? Asexual reproduction, the production of young ones by a single parent without the formation or fusion of gametes is called as asexual reproduction. ठीक है. So यहाँ पे कोई भी fusion of gametes नहीं हो रहा है. Gametes मतलब क्या होता है? हमारे देखो, whatever we have today, okay, let's say our body characteristics, our bone density, our blood group, the color of our eyes, okay, our skin color, all these things are basically coming from both our parents. If आप शायद पॉइंट आउट नहीं कर पाएंगे, बट बाहर का कोई भी इंसान पॉइंट आउट कर पाएगा कि आपकी शक्ल आपके मम्मी पापा से मिलती है, आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो आपके मम्मी पापा से मिलता है. ठीक है. सो ऑब्वियसली योर बोन्स, द साइज ऑफ योर बोन्स, द ब्लड ग्रुप दैट यू हैव, ऑल दीज आर बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर अ कंबाइनिंग एफर्ट फ्रॉम बोथ योर मॉम एंड डैड. सो जीन्स कंबाइन हुए यहाँ पे. ठीक है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा होता है कि आपका एक ही पेरेंट है तो एक का ही पेरेंट का कैरेक्टरिस्टिक रहेगा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वी विल हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन gametes are fusing. Gametes means what? Gametes are basically parents, मतलब फादर से और मदर से जो gametes आ रहे हैं ये फ्यूज कर रहे हैं. सो कैरेक्टरिस्टिक्स आर बेसिकली फ्यूजिंग.
Okay, you will not have all characteristics from your dad and you will not have 100% characteristics from your mom as well. It will be basically a mixture of both. Okay, so आपके जितने भी characteristics आपको दिखते हैं, चाहे वो आपके आई का कलर हो, चाहे आपके स्किन का टेक्सचर हो, चाहे आपकी बोन डेंसिटी हो, चाहे आपका ब्लड का ग्रुप हो, ठीक है, all these are basically a combination from both your mom and dad. Okay, so these genes are basically combining in sexual reproduction. Okay, now जैसे आपने आलू देखा रहेगा, है ना, आलू की खेती देखी अभी आपने. ओके, आलू की खेती होती कैसे है? हाउ इज दिस पोटैटो प्लांट ग्रोन? अगर आलू देखा रहेगा तो कभी ऐसे बर्ड्स निकलते देखें घर पे जो आलू आता है, ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको ऐसे स्लाइस करके खेतों में डाल देते हैं और ये इसी से दूसरा आलू का प्लांट निकलता है, ठीक है. सो बेसिकली दिस इज वन पोटैटो एंड दीज आर बर्ड्स. सो दिस इज बेसिकली अ सिंगल पेरेंट, दीज आर बर्ड्स, और इन्हीं बर्ड्स को हम भाई साहब खेतों में लगा देते हैं, तो एक आलू से 10 आलू ऐसे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे कोई दूसरे पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यही इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी, ये जिस तरीके का आलू होगा, बाकी के जो प्लांट्स आपके होंगे, ठीक है, दे विल हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पोटैटो. आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है. सो दिस इज बेसिकली अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है. ओके, लेट्स से आपका देखिए यहाँ पे जैसे सिंगल पेरेंट है, ये आपका हाइड्रा हो गया, ठीक है, दिस इज बेसिकली हाइड्रा. दिस इज एनिमल, दिस इज तो प्लांट हो गया. चलो, ये सिंगल पेरेंट से ये प्रोड्यूस हो रहा है. जैसे जिंजर होता है आपका, जिंजर जो अदरक होती है, अदरक का पेड़ अगर एक जगह पे कहीं पे लगाओगे ना, पूरा जंगल से भर जाएगा वो अदरक के. क्या होगा, ये जो रूट्स हैं, इसी रूट से फिर दूसरा प्लांट निकलेगा, उसी रूट से फिर उसके प्लांट से वो रूट निकलेगा, फिर उसके रूट से ऐसे निकलेगा, ऐसा पूरा भाई साहब भर जाएगा, ठीक है. सो दैट्स हाउ अ सिंगल पेरेंट. सो दिस इज बेसिकली अ सिंगल पेरेंट. तो इसका मतलब वॉट एवर कैरेक्टरिस्टिक्स दिस पेरेंट हैज, all its offsprings are going to have the same characteristic. ठीक है, whatever characteristic this parent has, all the characteristics will be same because there is no scope of variation. कोई दूसरा जीन्स आ ही नहीं रहा है तो वेरिएशन का कोई स्कोप ही नहीं है, ठीक है. so the same thing will be happening. okay, now the production of young buns by a single parent without the fusion of gametes. gametes कब होते हैं भाई साहब? gametes आपका मेल gametes and female gametes they fuse and they form the zygote. ये होता है आपका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, ठीक है. सारे एनिमल्स या हायर ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में है. दिस इज कॉल्ड, लेकिन ये कौन सा है भाई साहब? असेक्सुअल. यहां पे कोई फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो ही नहीं रहा है. ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स और बेसिकली देयर इज अ सिंगल पेरेंट और उसी से सब कुछ बन रहा है भाई साहब. सिंगल पेरेंट का ही इन्वॉल्वमेंट है, दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट यहां पे है ही नहीं. सो दिस इज बेसिकली व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बच्चा पार्टी? Asexual reproduction. Sorry. So the production of young ones by a single parent without the formation of fusion of gametes. So there is, इसको लिख लीजिए, the production of young ones by a single parent. The production of young ones by a single parent without the formation and fusion of gametes. Without the formation and fusion of gametes. Okay, so this is basically what? Production of young ones by a single parent without the formation and fusion of gametes is known as asexual reproduction. So there is no fusion. Fusion means combine करना, ठीक है. Male gametes और female gametes का combination होना, that is known as fusion, ठीक है. So what is fusion basically? Fusion is combination. Fusion is combination of gametes. Combination of gametes. The combination of male and female gametes is known as fusion and that is basically तो यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, ठीक है. It's a single parent involvement and it is also known as asexual reproduction. New individuals so formed are genetically identical to the parent. So obviously ये क्या होंगे? They will be identical to the parent because they would have no scope of variation. ये basically क्या होंगे? The new individuals, ये लिख लीजिए, are formed are genetically identical to the parent. तो ये पेरेंट के बिल्कुल हूबहू जेरोक्स कॉपीज होंगे, ठीक है. जैसे ये क्या है आपका, देखिए ये पैरामोशियम है. दिस इज बेसिकली पैरामोशियम, ठीक है. दिस इज पैरामोशियम. सिंगल पेरेंट है जो दो में डिवाइड हो रहा है, ठीक है. दो में डिवाइड हो रहा है तो ऑब्वियसली जो सिंगल पेरेंट का कैरेक्टरिस्टिक रहेगा वही दोनों में जाएगा, ठीक है. देयर इज नो स्कोप ऑफ एनी वेरिएशन.
ऑलमोस्ट जेरोक्स कॉपी बन जाएगी इसकी, ठीक है। सिमिलरली भाई साहब यहाँ पे देखिए इस तरीके के जितने भी आपके, जैसे हाइड्रा है, देखिए दिस इज बेसिकली हाइड्रा, दिस इज ऑल्सो अ सिंगल पेरेंट। क्या होता है इसका, ये एक टेंटिकल ये ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये धीरे धीरे बढ़ते 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 फाइनली अलग हो जाएगा, तो ये एक नया ऑर्गेनिज्म हो गया, बट इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द पेरेंट विच हैज प्रोड्यूस्ड इट। सो दिस देयर इज नो स्कोप ऑफ एनी वेरिएशन इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, ओके। इट इज अ प्रिमिटिव एंड सिंपल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, प्रिमिटिव मेथड है एंड सिंपल मेथड। प्रिमिटिव मतलब बहुत पुरातन मेथड है, और सिंपल मेथड है क्योंकि यहां पे दूसरे का कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं, ठीक है। प्रिमिटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इट्स अ प्रिमिटिव मेथड और काफी पुराना मेथड। प्रिमिटिव मतलब एकदम जो पुरातन मेथड है, ठीक है, एंड अ सिंपलर मेथड, सो देयर इज नो डिपेंडेंसी ऑन द अदर पेरेंट एट ऑल, ओके। अभी अगर हम सेक्सुअल मेथड की बात करें तो यहां पे मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दे बेसिकली फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। ये आपका क्या फॉर्म करते हैं, दे बेसिकली फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट एंड दिस जाइगोट गिव्स राइज टू ऑफस्प्रिंग्स, ओके। Obviously these offsprings which are produced as a result of fusion of gametes will have the characteristics of both the male and the female, ठीक है, दोनों का भी कैरेक्टरिस्टिक इसमें होगा, तो ये होना ही होना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द गैमेट्स विल फॉर्म। सो यहां पे आप देखो, जैसे ये देखिए, अगर आप देख रहे हो ये पे ये ईस्ट है बेसिकली, ठीक है, दिस इज बडिंग, इसको हम बोलते हैं। ये ईस्ट देखिए कैसे अपने आप ही डिवाइड कर रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। आपका जो दही बनता है वो बेसिकली ईस्ट का कमाल है, ठीक है। आपके बहुत सारे जो फ्लेवर्ड चीजें बनती हैं वो सब ईस्ट का कमाल है, इंक्लूडिंग अल्कोहल, ऑल दीज आर फॉर्म्ड बाय ईस्ट फर्मेंटेशन। सो दिस इज बेसिकली अ सेल ऑफ ईस्ट एंड सी हाउ इट इज डिवाइडिंग बाय व्हाट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो ये देखिए कैसे 1 से 4, 4 से 8, 8 से 10। बैक्टीरियल फैमिली जो होती है वो भी भाई साहब कैसी होती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction takes place by the following processes। अभी हम देखेंगे क्या क्या है। पहला है आपका बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। व्हाट इज बाइनरी फिजन, व्हाट डज फिजन मीन, फिजन मतलब टूटना, ठीक है। सो पहला हो गया आपका असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बच्चा पार्टी, बाइनरी फिजन, इसको लिख लीजिए, बाइनरी फिजन, ठीक है। इट इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। नाउ व्हाट आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। Unicellular organisms are organisms that are made up of only one cell, commonly in organisms like bacteria, amoeba, paramecium, euglena, etc. So these are different types of organisms, ठीक है, bacteria, amoeba, paramecium, euglena. So these are organisms in which binary fission occurs, okay. Binary fission means टूटना, bi मतलब होता है दो, ठीक है, binary. So this bi basically means two, ठीक है, and fission means टूटना, ठीक है, fission means break up, this basically breaks up, so it happens in bacteria, it happens in amoeba, paramecium and euglena। चलिए फटाफट लिख लीजिए इसको। these are the examples of organisms in which binary fission happens। binary fission is basically a mode of asexual reproduction, this is the first mode that we are going to study। so ये आपके examples में पूछे जा सकते हैं, what are the examples of organisms in which binary fission happens। so it happens in अमोइबा, पैरामोशियम, यूग्लेना, बैक्टीरिया। सो इट हैपेंस इन अमोइबा, ठीक है, ये आपका बैक्टीरिया हो गया। बहुत सारे टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं, रॉड शेप बैक्टीरियाज होते हैं, सर्कुलर बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, स्फेरिकल बैक्टीरियाज होते हैं। सो दीज आर बेसिकली एग्जांपल्स ऑफ बैक्टीरिया। दिस इज अमोइबा विच बेसिकली स्प्लिट्स अप एंड देन वी विल सी व्हाट इज पैरामोशियम। दिस इज पैरामोशियम बच्चा बाड़ी, ये पैरामोशियम है, इसका भी भाई साहब बाइनरी फिजन से ब्रेकअप होता है, ठीक है। यूग्लेना, दिस इज बेसिकली यूग्लेना, यूग्लेना। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यूग्लेना को हम जनरली प्लांट में काउंट करते हैं, इन तीनों को हम एनिमल्स में काउंट करते हैं, ठीक है। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर जनरली यूनिसेल्युलर एंड इन विच द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज असेक्सुअल, प्राइमरली बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन हैपेंस, बाइनरी फिजन मतलब टूटना, ठीक है, ओके। बाइनरी फिजन, अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स, इसको लिख लीजिए। बाइनरी फिजन होता क्या है, देखो यहां पे आपका ये एक पेरेंट सेल है, ये टूटते 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 दो में डिवाइड हो जाएगा। यहां पे देखो ये पूरा, दिस इज बेसिकली लेट्स से आपका ये पैरामोशियम हो गया। तो देखिए टूटते टूटते हाउ डिवाइड्स, ये बेसिकली ऐसे डिवाइड होता रहेगा, डिवाइड होता रहेगा, डिवाइड होता रहेगा एंड फाइनली इट विल ब्रेक, ठीक है। सो दिस इज बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, बाइनरी, बाइनरी मींस टू, ब्रेकिंग अप, फिजन मींस ब्रेकिंग अप, ठीक है। So here a parent cell divides into two daughter cells. So this is basically a parent cell.
टूटते 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 ये 2 डॉटर सेल हो गए. वन पेरेंट सेल इज एक्चुअली डिवाइडिंग इनटू 2 डॉटर सेल्स. Here again one parent cell, this is dividing into 2 daughter cells. Okay, so when one parent cell divides into 2 daughter cells, this is primarily an example of binary fission. Okay, so आपका देखिए जैसे ये अमोइबा है, so ये डिवाइड होते होते देखिए अमोइबा है, so it divides और फाइनली 2 हो गया. ठीक है, इसका फिर से डिवीजन होगा, इन दोनों का भी फिर से डिवीजन होगा, उनका भी आगे भी जो होंगे उनका भी डिवीजन होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है, ओके, सो दिस इज बेसिकली बाइनरी फिशन. अभी हम देखेंगे मल्टीपल फिशन. मल्टीपल फिशन क्या होता है? बाइनरी फिशन क्या हुआ? डिवीजन इनटू 2. सो मल्टीपल फिशन क्या होगा? मोर देन 2. डिवीजन इनटू मोर देन 2. ठीक है, ओके. सो इट इज अ रिपीटेड डिवीजन ऑफ अ पेरेंट सेल इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल्स. तो आप देखो यहां पे दिस इज लेट्स से अ बैक्टीरिया. जब बैक्टीरिया को ऑप्टिमम कंडीशंस मिलेगा तो ये सिस्ट में रहता है, यहां पे बहुत सारे में डिवाइड हो गया और फाइनली ये फूट जाएगा और सारे रिलीज हो जाएंगे. ठीक है, दिस इज बेसिकली नोन एज अ सिस्ट. बैक्टीरिया ज्यादा करके किस में रहते हैं? सिस्ट में रहते हैं. सिस्ट उनका एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है. अगर उनके आजू बाजू का वातावरण या एनवायरनमेंट उनके लिए मुनासिब नहीं है, इफ इट इज नॉट सुटेबल फॉर देम, देन दे विल स्टे इनसाइड इट. ओके, एंड दे विल डिवाइड and then finally it will burst out and the bacteria will be released. ठीक है, so it is a repeated division of a parent cell into a number of small individuals. So what is multiple fission? repeated division. तो हमने बाइनरी फिशन पढ़ा. बाइनरी फिशन मतलब क्या होता है? द फिशन इनटू 2. मल्टीपल फिशन मींस रिपीटेड डिवीजन इनटू मोर देन 2. रिपीटेड डिवीजन ऑफ अ पेरेंट सेल इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल्स इज नोन एज मल्टीपल फिशन. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके. एग्जाम्पल अमोइबा अनफेवरेबल कंडीशंस में. ठीक है, प्लाज्मोडियम ये हमारा भाई साहब मलेरियल पैरासाइट होता है. ठीक है, आप समझ लीजिए अगर कोई मस्क्यूटो बाइट होता है तो हमको जब मलेरिया होता है, सो हाउ, तो ये मस्क्यूटो के जो इन्फेक्टेड मस्क्यूटो होता है उसके प्रोबोस्किस से वो हमारे खून में एंटर करता है, और जैसे ही खून में एंटर करता है, ठीक है, दिस इज नोन एज प्लाज्मोडियम. ये धीरे धीरे डिवाइड होने लगता है और खून में फैलने लगता है, एंड दैट्स हाउ मलेरिया स्प्रेड्स. तो आज अगर मच्छर काटा हमको मलेरिया को, आज के आज ही नहीं हो जाएगा. इट विल टेक 3 to 4 days. वाई? अप्रॉक्सीमेटली 5 दिन बाद आपको इम्पैक्ट आना चालू हो जाएगा. यू विल स्टार्ट गेटिंग फीवर, यू विल स्टार्ट गेटिंग हेडेक्स. ठीक है, एंड देन ऑल द इम्पैक्ट्स हैपन. सो ये 4-5 दिन लगते हैं इसको पूरे खून में डिवाइड होकर फैलने में. ठीक है, ओके. सो अमोइबा अंडर अनफेवरेबल कंडीशन. तो अगर अमोइबा है अनफेवरेबल कंडीशंस में, प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट है, दिस ऑल्सो बेसिकली कीप्स ऑन डिवाइडिंग. ठीक है, क्लियर है? ये डिवीजन चलता ही रहेगा भाई साहब. ठीक है, तो बडिंग एक क्या होता है भाई साहब? बडिंग जैसे ईस्ट में होता है. ठीक है, ईस्ट में हाइड्रा इन ईस्ट. ठीक है, तो हाइड्रा, तो बडिंग किस में होगा भाई साहब? इट इज सीन इन हाइड्रा इन ईस्ट, द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम अ स्मॉल प्रोट्यूबरेंस. प्रोट्यूबरेंस मतलब थोड़ा सा कहीं पे एक पार्ट निकला है. ठीक है, मतलब तुमको कभी फोड़ा हुआ है क्या? फोड़ा फूल गया है यहाँ पे. ठीक है, कहीं पे गिरे हो तो फूल गया है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोट्यूबरेंस. थोड़ा सा फूल गया है, तो इनके बॉडी में भी थोड़ा सा एक जगह पे फूलने लगेगा, ऐसे फूलने लगेगा एंड देन फाइनली इट सेपरेट्स आउट. हाइड्रा में ऐसा होता है, प्रोट्यूबरेंस. ठीक है, तो प्रोट्यूबरेंस बोलेंगे हम इसको. जैसे ये देखो हाइड्रा है, अभी देखो ये टुन्नू सा एक फोड़ा हुआ है यहाँ पे, दिस इज बेसिकली द पेरेंट हाइड्रा. यहाँ पे एक प्रोट्यूबरेंस हुआ. प्रोट्यूबरेंस अभी धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा. जैसे एक दिन थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा, ये कट के अलग हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज नोन एज बडिंग. आप देखो भाई साहब जैसे यहाँ पे, ठीक है, तो बड राइजेस, एक बड यहाँ पे एक कोने में एक बड राइज हो रहा है, और फाइनली ये सेपरेट आउट हो जाएगा. फाइनली आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? द ऑफस्प्रिंग रिमेन्स अटैच्ड टू द पेरेंट ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ. जब तक ये भाई साहब ग्रोथ नहीं हो रहा है पूरा तब तक ये पेरेंट से अटैच रहता है, और फाइनली जैसे ग्रोथ पूरा कंप्लीट हो जाता है, इट गेट्स डिटैच्ड. सो हियर आल्सो द ऑफस्प्रिंग रिमेन्स अटैच्ड. दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ ईस्ट. सो इफ यू सी, ईस्ट डेवलप्स अ बड, this protuberance keeps on developing and finally it remains attached to the parent till it actually grows, and finally में क्या हो जाएगा? separation हो जाएगा. so it separates eventually to live as an independent organism. तो ये आपका separate out हो जाएगा. so now it is basically independent. ये हाइड्रा का बच्चा, ठीक है, ये ईस्ट का बच्चा. ठीक है, so this is basically budding. this is how it happens. ठीक है, तो एक सेल का डिवीजन होना, जैसे अमोइबा में एक पूरे सेल का डिवीजन हो गया, यहाँ पे एक फोड़ा फुंसी सा निकलेगा, है ना, दिस इज बेसिकली अ प्रोट्यूबरेंस, और वो धीरे धीरे डेवलप होता रहेगा और फाइनली वो सेपरेट आउट हो जाएगा. अगेन सिंगल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट. सो अगेन व्हाट काइंड ऑफ reproduction is this? This is asexual reproduction. So what have we learned? How many types of asexual reproductions? First was binary fission. Binary fission means splitting up into two exactly equal. ठीक है, और फिर multiple fission.
ठीक है. सो मल्टीपल फिजन मीन्स स्प्लिटिंग अप इनटू मोर देन टू. फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम which is a protozoa which enters our body, which is basically a malarial parasite. It also divides by multiple fissions. ठीक है. Amoeba divides by binary fission. Paramecium divides by binary fission. So these are examples of binary fissions. Okay. Plasmodium divides by multiple fissions. Many bacteria divide by multiple fissions. What else? We have basically budding. So yeast divides by budding. Hydra divides by budding. ठीक है. Hydra is generally found in it is basically aquatic. ओके. सो हाइड्रा में इस तरह से भाई साहब डिवीजन होगा. ईस्ट जो आप अगर मतलब ये डीमार्ट से ईस्ट का पैकेट उठाकर लाएंगे और जब आप उसको डालते हैं फ्लेवर के लिए, ठीक है, तो मतलब ईस्ट अपने आप ही डिवाइड होता रहता है, थर 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 डिवाइड हो जाएगा. ठीक है. सो जैसे दही बनना ये भी एक टाइप का बैक्टीरिया है. ठीक है. जो फटाफट फैल रहा है. कुछ बैक्टीरियाज हमारे लिए प्रोबायोटिक होते हैं. All bacteria are not harmful. Some microorganisms, as we have studied earlier, are useful to us as well. ठीक है. सो इस तरह से भाई साहब ईस्ट का डिवीजन होता है, फटाफट फैलता है वो. ठीक है. दिस इज कॉल्ड बडिंग. ओके. नाउ विल कम टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस वी स्टडी? 3. What are they? Binary fission, multiple fission, and budding. Binary fission example. Binary fission is splitting up into 2. Example: Amoeba, Paramecium. Multiple fission is splitting up into more than 2. तो प्लाज्मोडियम. ठीक है. व्हाट एल्स? व्हाट एल्स डू वी हैव? प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम एंड अंडर अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस अमोइबा. एंड देन व्हाट एल्स? बडिंग. सो दिस का आपका हो गया बडिंग, ईस्ट एंड हाइड्रा. ठीक है. प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस बाय फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ स्पेशल सेल्स कॉल्ड गैमीट्स. ठीक है. तो प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस, जिसको अपन और क्या बोल सकते हैं? ऑफस्प्रिंग्स. प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स. ठीक है. बाय द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन of special cells called gametes. लिख लीजिए इसको. By the formation and fusion of special cells called gametes contributed generally by two parents, male and female, is known as sexual reproduction. तो यहां पे भाई साहब दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है. Unlike in sexual reproduction wherein there was only an involvement of a single parent, here two parents are involved. So the genes are actually going to come from two parents. The gametes are actually going to come from two parents. Okay. Production of young ones by the formation and fusion of special cells called gametes. Production of young ones by the formation and fusion of special cells called gametes, contributed by generally by two parents, male and female, is termed as sexual reproduction. इसको अपन बोलेंगे sexual reproduction. ठीक है. Done people? Okay, so sexual reproduction is the fusion of two gametes, male and female, coming from two different parents, and this is basically coming fusion of gametes. ठीक है. So ये male gamete, this is basically female gamete. Okay, this forms a zygote. This forms a zygote and this gives rise. So unlike sexual reproduction, bacteria, the young ones are not genetically identical to the parent. So whatever young ones are there, they will have some similarity to the mother and they will have some similarity to the father as well. Okay. So bacteria में जैसे सारे के सारे single parent के तरह ही होंगे. All will be like the single parent. There will be no scope of variation. So genetically identical to the parent, ये कहाँ पे होता है? Asexual reproduction में होता है. ठीक है. Asexual reproduction. और वेरिएशन किस में आता है? वेरिएशन मतलब आपके बॉडी फीचर्स में पूरा एक सिंगल पेरेंट पे इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा. सो वेरिएशन विल बी अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. अनलाइक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया, द यंग वंस आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट. तो यंग वंस आर नॉट जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट. ठीक है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज वेरिएशन. तो ये हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके. सो अगर आप देखोगे भाई साहब इन सब में डिसिमिलरिटीज है. दे आर ऑल डिसिमिलर. In multicellular organisms, the gametes are produced by reproductive organs. So male and female reproductive organs are there. So male gametes called sperms are produced in the male reproductive organ. So these are basically testes in which the male gametes, that is sperms, are produced in humans. Okay. And similarly, female gametes are called eggs or ova are produced by female reproductive organs. ठीक है. तो फिर आपके जो sperms हैं, sperms will basically fuse with the egg after sexual activity. Sperms will fuse with the egg. A single called fertilized egg or zygote.
तो स्पर्म एंड ओवम, तो स्पर्म इज कमिंग, स्पर्म इज द मेल गैमेट, ठीक है, ये हो गया आपका मेल गैमेट एंड ओवम इज द फीमेल गैमेट, ठीक है, दिस इज बेसिकली द फीमेल गैमेट एंड दे फ्यूज, दैट इज दे कंबाइन अ सिंगल सेल कॉल्ड फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट इज फॉर्म। इसको लिख लीजिए भाई साहब, ऐसा जाइगोट होगा। आपको दिख रहा है यहां पे इतने सारे डिविजन्स क्यों हैं? व्हाई देयर सो मेनी डिविजन्स इन द जाइगोट? नहीं 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 नहीं, मल्टीपल, तो क्या बहुत सारे बच्चे पैदा होंगे क्या? नहीं, ये जो बना है आपके फ्यूजन से, मतलब आफ्टर द स्पर्म एंड ओवम हैव फ्यूज्ड, ये आपके बॉडी पार्ट्स है, हैंड्स, लेग्स, ये सब है, इसका ये डिवीजन है। ये एक ही बॉडी के इतने सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, आपके जितने भी सेल्स अराइज होंगे वो यहां से अराइज होंगे। दिस इज बेसिकली द जाइगोट। हमारे बॉडी में इतने सारे सेल्स हैं, इतने टाइप ऑफ सेल्स हैं, वो सब यहां से अराइज होंगे, ठीक है, दैट इज बेसिकली द जाइगोट। तो जाइगोट अप्रोक्सीमेटली डिवाइड्स 100 टाइम्स, ठीक है। जाइगोट एक बार फ्यूज होगा ना, देखो जैसे समझो ये स्पर्म एंड बेसिकली द ओवम हैव फ्यूज्ड, ठीक है, ये फ्यूजन हुआ और पहले ऐसा ही रहेगा, फिर एक डिवीजन, फिर दो डिवीजन, फिर ऐसे करते 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 ऐसे डिवीजन, ऑलमोस्ट 100 डिविजन्स आर फॉर्म, ठीक है। सो ऑलमोस्ट 100 डिविजन्स आर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड द जाइगोट। ओके, सो ये जाइगोट भाई साहब क्या बनाएगा? दिस विल जाइगोट दैट डेवलप्स इनटू एन ऑफस्प्रिंग। सो इट इज द जाइगोट which is basically the fertilized egg which develops into a offspring. Are we clear? Clear on this one बच्चा बाड़ी? In some cases like the earthworm, ठीक है, earthworm में some individuals produce both types of gametes. तो earthworm में दोनों भी gametes produce होते हैं, ठीक है। जैसे in human beings males will produce the sperm and females will produce the ovum, ठीक है। तो females में ovum produce होगा और males में, तो लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनमें दोनों भी प्रोड्यूस होते हैं एक साथ ही, एक ही बॉडी में, ठीक है। सो इन सम केसेस लाइक दैट ऑफ अर्थवर्म सम इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट्स। सो अर्थवर्म में दोनों भी गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, मेल एंड फीमेल बोथ, ठीक है, मेल एंड फीमेल बोथ। सो दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड देयर इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द सेम बॉडी, इन द सेम बॉडी। इट इज कॉल्ड hermaphrodite। इसको लिख लीजिए भाई साहब, इट इज कॉल्ड hermaphrodite। hermaphrodite मीन्स प्रोड्यूसिंग both male and female gametes, producing both male and female gametes in the same body, ठीक है। hermaphrodite means producing both male and female gametes in the same body। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ये हो गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो hermaphrodite मीन्स प्रोड्यूसिंग बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन द सेम बॉडी, ठीक है। डू यू नो पैरेंथेजेनेसिस इज अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच फीमेल्स प्रोड्यूस एग्स दैट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसको लिख लीजिए जस्ट जनरल नॉलेज के लिए। पैरेंथेजेनेसिस इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच फीमेल्स प्रोड्यूस एग्स दैट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे फीमेल्स एग्स प्रोड्यूस करते हैं और विदाउट फर्टिलाइजेशन ही इन एग्स का डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज पार्थेनोजेनेसिस, सॉरी, पार्थोजेनेसिस इज फॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच फीमेल्स प्रोड्यूसेस एग्स that develop without fertilization, occurs naturally in Aphides, Daphnia, Rotifers, etc. तो ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें ये होते हैं, ठीक है। लिख लीजिए फटाफट फटाफट। पार्थेनोजेनेसिस एक मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहां पे फीमेल्स एग्स तो प्रोड्यूस करते हैं लेकिन उनका फर्टिलाइजेशन हुए बिना ही वो डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। दीज एग्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। एफाइडिस, ये एफाइडिस हो गया, डैफ्निया हो गया, एंड दिस इज रोटिफायर्स। एंड इन मेनी प्लांट्स लाइक पाइनएप्पल, ग्रेप्स एंड बनाना, सेम चीज, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे? पार्थेनोजेनेसिस। चलिए 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 फटाफट फटाफट। Done, done, done. Okay. In many social insects, such as the honeybee and the ant, ठीक है, the unfertilized eggs gives rise to the male drones, ठीक है। ये एक अजीब सा है हनी बीज में, पर्टिकुलरली हनी बीज के पूरे मधुमक्खी के छत्ते में सिर्फ एक रानी मक्खी होती है, बाकी सब ड्रोन्स होते हैं।
ये अनफर्टिलाइज्ड एग्स, क्यों है अनफर्टिलाइज्ड एग्स? क्योंकि ये भी पार्थेनोजेनेसिस से हो रहे हैं, ठीक है। द अनफर्टिलाइज्ड एग्स गिव्स राइज टू द मेल ड्रोन्स, यही काटते हैं आपको, ठीक है। ये मेल ड्रोन्स होते हैं, ये घूमते रहते हैं ऐसे पूरा पूरा, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली पूरे मधुमक्खी के छत्ते में ये ज्यादा फैले होते हैं, ठीक है। इन मेनी सोशल इंसेक्ट्स, ठीक है, सच एज द हनी बी एंड द एंट, द अनफर्टिलाइज्ड एग्स गिव्स राइज टू द मेल ड्रोन्स, ठीक है। इसको लिख लीजिए फटाफट फटाफट। द अनफर्टिलाइज्ड एग है ये, पार्थेनोजेनेसिस से इसका डेवलपमेंट हो रहा है। अनफर्टिलाइज्ड एग इज बेसिकली गिविंग राइज टू द मेल ड्रोन्स। क्लियर है? Okay, so this is basically the male drones. Look at this, ठीक है। So these are a different species. आप इसको देखकर ही बता सकते हैं ये मेल ड्रोन है। हनी बीज के स्पीशीज में भी और एंड्स के स्पीशीज में भी आप इन मेल ड्रोन्स को स्पेसिफिकली, द फर्टिलाइज्ड एग्स गिव्स राइज टू द वर्कर्स एंड द क्वीन, ठीक है। अनफर्टिलाइज्ड एग्स से क्या निकला? मेल ड्रोन्स, एंड द फर्टिलाइज्ड एग्स गिव्स राइज टू द वर्कर। ये देखिए वर्कर एंट है और ये आपका वर्कर बी है, एंड द क्वीन, ये जो क्वीन एंट है और ये जो क्वीन बी है, ये सब आपके फर्टिलाइज्ड एग्स से होते हैं। फर्टिलाइज्ड एग्स गिव्स टू द वर्कर्स एंड द क्वीन। इसीलिए मधुमक्खी के छत्ते में आप बोलते हैं ना भाई साहब, एक ही रानी मक्खी है, वो एक ही रानी मक्खी फर्टिलाइज्ड एग से बनी है, ठीक है। वर्कर बीज जो हैं वो भी फर्टिलाइज्ड एग से बने हैं, वर्कर एंड्स जो हैं वो भी फर्टिलाइज्ड एग से बने हैं, ठीक है। मेल ड्रोन्स जो हैं वो अनफर्टिलाइज्ड एग से बने हैं, ठीक है। और मेल ड्रोन्स इन बीज ऑल्सो, बोथ इन मेल ड्रोन्स इन एंड्स एज वेल एज इन बीज, they are basically formed from unfertilized eggs. Worker bees are formed from fertilized eggs and queen bees are also formed from fertilized eggs. ठीक है, ये हो गया आपके workers and queen, ठीक है। The fertilized eggs give rise to female workers and the queen. Okay, a rabbit can produce 10 to 30 offsprings per year and fruit fly can produce 900 offsprings per year. ये reproduction capacity है, देखिए। A rabbit can produce 10 से 30 बच्चे पैदा कर सकते हैं रैबिट, ठीक है, पर ईयर। एंड फ्रूट फ्लाई आपने देखा रहेगा, जो आप अगर घर पे फ्रूट रख दोगे काट के, थोड़ी देर बाद जो उसमें छोटी छोटी मक्खियां मिनमिनाती हैं, देज आर बेसिकली नोन एज फ्रूट फ्लाइज, ठीक है। फ्रूट फ्लाई कैन प्रोड्यूस 900 ऑफ स्प्रिंग्स पर ईयर, दे कैन प्रोड्यूस 900 ऑफ स्प्रिंग्स पर ईयर, ठीक है। So these are certain things. Animals with few offsprings can devote more resources to the nurturing and protection of each individual offspring. So obviously जितने कम बच्चे होंगे उतना ज़्यादा हम उसमें ध्यान दे पाएंगे, है ना। अभी अगर समझो भाई साहब 900 बच्चे पर ईयर, मतलब 30 बच्चे पर महीने, नहीं 30 नहीं, ज़्यादा ही हो जाएंगे भाई साहब, 12 8 96, तो अप्रॉक्सीमेटली भाई साहब 90 बच्चे पर मंथ, ठीक है, मतलब 3 बच्चे पर दिन। तो आप सोचिए ये पेरेंट क्या ही ध्यान दे पाएंगे, ठीक है। तो नर्चरिंग या उनका डेवलपमेंट में ध्यान नहीं जा पाएगा। जितने कम हो जाएंगे स्पीशीज उतना नर्चरिंग में ध्यान जा पाएगा, ठीक है। रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स, द एनिमल्स आर ऑफ 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द साइट्स ऑफ देयर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो बिल्कुल भी नहीं लिखता है, मैं कंटिन्यूसली देख रहा हूं। इतने दिन तो एब्सेंट था तो कुछ वीडियो देखा नहीं, ऐसे ही चल रहा है ना। तू बताना 2.5-3 महीने एब्सेंट था भाई साहब, तू स्कूल में भी यहाँ पे भी। हाउ इज इट दैट यू आर गोइंग टू कवर अप द लैग? नहीं, टांग दिया भाई साहब, देख लेंगे। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट, ठीक है। तो 3 टाइप के हो गए भाई साहब। द एनिमल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप के एनिमल्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ द साइट्स, मतलब कहां पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है और डेवलपमेंट कहां पे हो रहा है। अभी आप बोलोगे फर्टिलाइजेशन कहां पे होगा, ज्यादा करके फीमेल बॉडी में होगा, नहीं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जहां पे फर्टिलाइजेशन बाहर होता है। फॉर एग्जांपल फ्रॉग्स में अंडे और स्पर्म दोनों भी पानी में रिलीज किया जाता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इट हैपेंस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, ठीक है। So it's not necessary that the fertilization will happen only inside the female body. In some organisms, the fertilization might happen outside both the male and the female bodies. ठीक है? So there are 3 types of basis on the basis of the sites of their fertilization. कहाँ पे fertilization हो रहा है और कहाँ पे development हो रहा है ना। development का बात सुनो, ठीक है। जैसे कुत्तों में हो गया, बिल्लियों में हो गया, ह्यूमंस में हो गया, बच्चे का डेवलपमेंट माँ के पेट के अंदर होता है, राइट, ठीक है। सो द एंटायर डेवलपमेंट for 9 months or whatever is the period, it happens inside the female's body. But in some cases, the development happens outside. Where? अरे कोई एग्जाम्पल दो, कहां पे डेवलपमेंट, बच्चों का डेवलपमेंट आउटसाइड द फीमेल्स बॉडी हो रहा है। हाँ, फ्रॉग तो फर्टिलाइजेशन भी अलग। अरे चिड़ियों को अंडे नहीं देते, देखा है?
तो अंडा मतलब क्या है, वो बाहर डेवलपमेंट हो रहा है ना उसका। अंडे के ऊपर तो चिड़िया बैठी रहती है, तो जिस दिन अंडा दिया उस दिन चिड़िया निकल आती है क्या, नहीं ना, ठीक है। तो इतने सारे चिड़िए जो होते हैं, हेन्स हो गए, आपके पिजन्स हो गए, ये जो अंडे देते हैं, ये डेवलपमेंट कहाँ पे हो रहा है भाई साहब, बाहर ही तो हो रहा है, ठीक है। बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो अंडे के अंदर हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली डेवलपमेंट विच इज टेकिंग आउटसाइड द फीमेल्स बॉडी. So on the basis of this, the animals are divided into three categories. ठीक है, wherein the first one is external fertilization. Fertilization भी external और development भी external. The fertilization is external and the development is also external. This is one case. ठीक है, internal fertilization and external development. तो पहला हो गया आपका external fertilization and external development. फर्टिलाइजेशन भी एक्सटर्नल और डेवलपमेंट भी एक्सटर्नल. दूसरा हो गया आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट. फर्टिलाइजेशन अंदर हो रहा है लेकिन डेवलपमेंट बाहर हो रहा है, ठीक है. जैसे चिड़ियों में देखा जाता है, फर्टिलाइजेशन उनका अंदर हुआ है, एग जो है वो अंदर फॉर्म हुआ है, लेकिन जो बच्चे का डेवलपमेंट होगा वो उनके शरीर के बाहर होगा, ठीक है. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल डेवलपमेंट, जैसे फ्रॉग्स ने भाई साहब, फर्टिलाइजेशन भी एक्सटर्नल है और डेवलपमेंट भी एक्सटर्नल है. इसके बाद आता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल डेवलपमेंट. ह्यूमंस, कैट्स, डॉग्स एक्सेट्रा, इन सब में फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल है और डेवलपमेंट भी इंटरनल है, ठीक है. क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है. मस्क्यूटोज में भी ऐसा ही होता है वैसे, उन लोग अंडे देते हैं, ठीक है. ओके, सो हम पहले देखेंगे तो ये लिख लीजिए भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है. द एनिमल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द साइट्स एंड ऑफ देयर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट. ऑन द बेसिस ऑफ द sites of the fertilization and development. Okay, done. Okay, so external fertilization and external development, internal fertilization and external development, and internal fertilization and internal development. External fertilization and external development, just as I said, between frogs, okay, the sperms and the eggs are released in water and that's where the fertilization happens and the development happens as well. तो पहले रिलीज होते हैं टैडपोल, जो पानी में रहते हैं और धीरे धीरे वो फ्रॉग बनते हैं. टैडपोल्स आर प्योरली एक्वेटिक और फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस, ठीक है, मतलब वो लैंड में भी रह सकते हैं और वाटर में भी. Tadpoles are the initial stages of frogs. They are only aquatic. ठीक है, क्लियर है भाई साहब.
ओके, सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट, तो ये देखिए आपके स्पर्म्स रिलीज हुए और यहां पे भाई साहब एग्स रिलीज हुए, दे विल फ्यूज विथ ईच अदर, और ये मतलब फीमेल के बॉडी के अंदर नहीं होंगे, दे विल हैपन ओनली इन वाटर। ओके, सो यहां पे देखो क्या हो रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, विच मीन्स द फर्टिलाइजेशन हैपेंस एक्सटर्नल टू बोथ द बॉडीज एंड द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट ऑल्सो हैपेंस एक्सटर्नली। क्या ये समझ में आ रहा है? इन फ्रॉग्स, ठीक है। सो द स्पर्म्स एंड द एग्स बोथ आर रिलीज्ड इन वाटर एंड द डेवलपमेंट हैपेंस एक्सटर्नली, ठीक है, द डेवलपमेंट हैपेंस एक्सटर्नली। सो यहां पे एग्स फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, दे आर बेसिकली फ्यूजिंग, सो दिस आर बेसिकली टैडपोल्स, ये देखिए आपके टैडपोल्स हैं, ठीक है, पत्तों पे रहते हैं ये ज्यादा करके, तो दीज आर टैडपोल्स। फॉर दिस पैटर्न टू सक्सीड, ठीक है, मेल एंड फीमेल मस्ट शेड देयर गैमेट्स एट द सेम टाइम एंड प्लेस एंड इन लार्ज नंबर्स, ठीक है। तो ये जो गैमेट्स रिलीज करेंगे दोनों भी सेम टाइम पे रिलीज करने चाहिए, ठीक है। अगर दोनों सेम टाइम पे रिलीज करेंगे और सेम प्लेस पे रिलीज करेंगे तभी जाकर ये पैटर्न रिप्रोडक्शन का सक्सेसफुल हो पाएगा, ठीक है। सो मेल एंड फीमेल्स मस्ट शेड देयर गैमेट्स एट द सेम टाइम एंड प्लेस एंड इन लार्ज नंबर्स एज वेल, ठीक है, एंड इन लार्ज नंबर्स एज वेल। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। इट अकर्स इन फाउल्स, तो आपका भाई साहब देखिए जितने भी बर्ड्स होते हैं, फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बर्ड है उसके अंदर होगा, लेकिन डेवलपमेंट आपका एग में होगा जो बाहर होगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल डेवलपमेंट। इट अकर्स इन फाउल्स एंड इन ऑल बर्ड्स, मुर्गियों में और बाकी सारे बर्ड्स में हमको ये देखने को मिलता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। कोई लिख नहीं रहा है, ठीक है। प्लैटिपस, porcupine, all these are basically examples, ठीक है। sperms are passed from the male into the female body, ठीक है। the fertilization takes place within the female body। फटाफट लिखिए इसको भाई साहब, आप लोग बिल्कुल भी नहीं लिखते हैं, ना ही जब मैं नोट्स भेजता हूं तब और ना ही क्लास के अंदर। ठीक है, ओके। द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल बॉडी, सो द जाइगोट आफ्टर इट्स फॉर्मेशन इज सराउंडेड बाय सम सिक्रीशंस, रिजर्व फूड एंड इवन ए शेल फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रायो। तो ये आपका जाइगोट है, ठीक है। हम जो बोलते हैं ना अंडा हम खाते हैं तो काफी सारा प्रोटीन हमको मिलता है, ये प्रोटीन क्या है? एक्चुअली इसका फूड है द जाइगोट। तो अभी देखो ये नर्चर हो रहा है यहाँ पे, इसको फूड चाहिए रहेगा। द जाइगोट फॉर्म हो गया आफ्टर इट्स फॉर्मेशन इज सराउंडेड बाय सम सिक्रीशंस, बहुत सारे सिक्रीशंस रहते हैं, रिजर्व फूड है एंड इवन ए शेल्फ फॉर डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रोइंग एम्ब्रायो। तो ये सारी चीजों से भाई साहब जाइगोट घिरा रहता है। चलिए चलिए फटाफट लिखिए, आराम से बैठना नहीं है भाई साहब। द जाइगोट आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, तो जाइगोट फॉर्मेशन यहाँ पे एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। द जाइगोट आफ्टर इट्स फॉर्मेशन इज सराउंडेड बाय सम सिक्रीशंस, तो भाई उसका अंडे में डेवलपमेंट हो रहा है, अंडे के अंदर उसको सारा खाना चाहिए भाई। डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो डेवलपमेंट के लिए पर्याप्त मात्रा में खाना तो चाहिए रहेगा ना। तो ये खाना क्या है? देखो सिक्रीशंस, इसके लिए रिजर्व फूड रहता है एंड इवन ए शेल फॉर द डेवलपमेंट। अंडे का जो शेल होता है वो ठोस के होता है क्योंकि उसके अंदर प्रोटेक्टिव कवरिंग वो ऑफर कर रहा है, ठीक है। इट इज बेसिकली अ प्रोटेक्शन फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रायो। So this is basically the growing embryo which is having a protective covering. Are we clear to this one people? हम समझ में आता हम? Okay, okay, okay.
So these are secretions, these are reserve food, these are shells. Okay, after the egg has been laid, the development of the chick takes place. तो आपका भाई साहब एग ले हुआ, उसके बाद धीरे धीरे अंडा फूटेगा, फिर चिक्स निकलेंगे. सो दैट इज हाउ द डेवलपमेंट टेक्स प्लेस. ठीक है. ओके, नाउ वी विल कम टू इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल डेवलपमेंट. किस में होता है? ह्यूमन बींग्स में होता है. सारे जितने भी तमाम एनिमल्स हैं मोस्टली इनमें होता है. ठीक है, कुत्ते बिल्ली वगैरह सब में होता है. सो यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल होगा. फर्टिलाइजेशन मीन्स व्हाट? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म द जाइगोट. दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. सो फर्टिलाइजेशन आपका इंटरनल होता है, प्लस डेवलपमेंट भी आपका इंटरनल होता है. द डेवलपमेंट ऑल्सो हैपेंस इंटरनल. ठीक है. सो मेल एंड फीमेल फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट and development of the young one takes place inside the body of the female. ठीक है. so the body of the female, यहाँ पे भाई साहब आपका डेवलपमेंट के स्टेजेस होते हैं. तो पहले देखिए जाइगोट बना, जाइगोट के डिविजन्स हुए, डिविजन्स होते फाइनली इस तरह से बॉडी बनती है. ठीक है. फाइनली विद इन, ये हम सबका कहानी है. ठीक है. वी ऑल हैव बीन बेसिकली फॉर्म. तो हम सब भाई साहब ऐसे ही बने हैं. ये प्लेसेंटा होता है जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट होता है. सो इफ यू सी देयर आर लाइक 100 डिविजन दैट विल हैपन एंड फाइनली इट विल डेवलप इनटू एन एम्ब्रायो. ठीक है. धीरे धीरे, मतलब एक बारगी में सब नहीं बन जाता है. ठीक है. सो धीरे धीरे एक स्टेज होता है, उस स्टेज से इस तरह से ये बनते हैं. ओके, सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो ऑब्वियसली वी हैव सीन दैट देयर आर टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. वन इज सेक्सुअल एंड द अदर वन इज असेक्सुअल. असेक्सुअल में हमने क्या क्या पढ़ा? क्या क्या डिविजन हैं आपके? बाइनरी फिजन हो गया, मल्टीपल फिजन एंड बडिंग. बाइनरी फिजन किस में होता है? अमोइबा में होता है, पैरामोशियम में होता है. ठीक है. मल्टीपल फिजन किस में होता है? प्लाज्मोडियम में होता है. ठीक है. और अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस इन अमोइबा भी होता है. और आपका क्या हो जाएगा? आपका मल्टीपल फिजन सर्टेन बैक्टीरियाज में भी होता है. और फिर क्या है आपका? बडिंग ईस्ट में होता है एंड हाइड्रा में होता है. सो दीज आर बेसिकली बडिंग. ओके. एंड व्हाट वी हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 कैटेगरीज हैं. एक हो गया भाई साहब आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट विच हैपेंस इन द केसेस ऑफ फ्रॉग्स. ठीक है. एक हो गया भाई साहब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, internal fertilization and external development. This happens in the case of birds and fowls. ठीक है. And internal fertilization and internal development which happens primarily in animals like human beings. So what is external fertilization and external development? Here the gametes are released in an external environment. For example, in frogs the male gametes and the female eggs are released in water at the same time. Okay, and the fusion takes place, the zygote is formed there. So the entire development is external. Okay, so that happens in frogs primarily. What happens in other organisms, like let's say then we have an example of internal fertilization but external development. It generally happens in birds and fowls. So what happens? Fertilization happens internal. Okay, but they lay eggs, and inside these eggs the chicks basically develop, the offspring development takes place. Okay, so inside these eggs we have enough amount of proteins and reserve food which is providing the optimum condition necessary for the development of these individuals inside the eggs. So this is an example of internal fertilization and external development. So the chicks are not produced. These are known as, इस तरीके के एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं जो अंडे देते हैं? ओविपैरस. Okay, we are viviparous. Okay, we do not produce eggs, we produce directly offsprings. Okay, we are viviparous. These animals, or rather birds which produce eggs, they are known as oviparous. So they are an example of internal fertilization and external development. Then finally we come to the category wherein internal fertilization happens and internal development happens. So the fertilization, that is the fusion of male and female gametes, happens within the body of the individual or the animal species, and the development also happens within the same animal species. Okay, so this is not an external development that happens. Have we understood what is sexual and asexual reproduction? Okay, all right, so we will tomorrow continue with the reproductive system of both plants and animals. What are the reproductive systems, how they function, and how the entire thing takes place. Okay, all right, thank you so much for your valuable time.